Let me welcome you again, all of you. And my name is Atul Palandurkar. I'm an international coach and author. I am a digital marketing expert and trainer. I'm running my own digital marketing agency from year 2008. I started digital marketing division from 2008 because I was working with several clients. We were developing websites. We were developing some applications for them, and they were looking for marketing. So in that era, we started, let's say, SEO and all those things. Let's Google stuff. Okay. So all the marketing stuff we started. Then till now, if I say, we have served 300 plus clients, including celebrities, business persons, a lot of businesses, politicians, sport persons, and a lot of individuals. Okay. Individuals, when I say, that's like trainers, coaches, multi-level marketing peoples, and so many other people. Okay. I have trained more than 5 lakh candidate globally. I have trained more than 5 lakh candidates globally. Okay. So I do a lot of trainings all over the world. Okay. I'm an Amazon trained e-commerce specialist. Amazon trained e-commerce specialist. When I say Amazon trained e-commerce specialist, that means, or you can call it Amazon partners in other word. Okay. So when I say that, uh, I help people for understanding. Okay. I help people for onboarding Amazon. Okay. So where they can start selling, or they can register themselves as a seller on Amazon. They can onboard their products, and they can start selling on Amazon. Okay. I have received 12 awards till date, and recent was Rashtriya Pratibha Award at Delhi. Okay. By the hands of, let's say, Foreign Minister of Nepal. Okay. And I'm a member of NetBeans Dream Team and Google Train the Trainer team as well. Okay. Just to interrupt. क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? Everyone can hear me? Can you just reply in the chat? Okay. Sagar, can you hear me now? Okay, great. Yeah. Okay. So that's great. Fine. Let's move ahead with that note. Okay. Fine. So why digital marketing? The first thing, so if I say, even if I take the social media marketing out of digital marketing, okay, even if I talk about only social media marketing, अगर मैं सिर्फ social media marketing की भी बात करूँ, तो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है, और कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, और अगर हम देखते हैं आगे की चीजें, अगर देखते हैं, या आगे की अगर हम थोड़ा और फ्यूचर का देखते हैं, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब एक ये होने वाला है, ठीक है, और इट विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसेस, बहुत ज़्यादा, और उसमें आगे और स्कोप है, और बहुत ज़्यादा ही आगे और बढ़ने वाला है, ठीक है। बाकी भी अगर हम मतलब इसमें देखें कि क्यों हमको करना चाहिए या क्या करना चाहिए, ठीक है, सो देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स, मतलब हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है जो हमको सोचकर ये करना चाहिए, ठीक है। वी कैन डू लॉट ऑफ मतलब यहाँ अगर हम देखे जाए तो देर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल विथ दिस, द स्कोप इज वेरी वाइडर कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग रिमेन्स द मोस्ट पावरफुल वे ऑफ मार्केटिंग इन द फ्यूचर, ठीक है। ये फ्यूचर में बहुत पावरफुल मार्केटिंग मीडियम रहेगा, क्योंकि अगर आज हम देखते हैं कि फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है या ट्रेडिशनल मार्केटिंग फॉर्मेट्स, अगर कोई भी अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग फॉर्मेट की अगर मैं बात करता हूँ, वो चाहे मतलब हमारा सोशल मतलब जो भी हम फॉर्मेट्स यूज करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग फॉर्मेट्स लाइक न्यूज़पेपर एड्स, लीफलेट्स, ब्रोशर्स, हैंडबिल्स, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट करने का तो अभी कोई यही नहीं रहा है, ठीक है। सेकंड अगर हम देखते हैं तो वी हैव नो ऑप्शन के मतलब यहाँ हमको कोई गारंटी नहीं है कि हम हमारे टारगेट मार्केट तक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है, कोई ये नहीं है, ठीक है। बट द डायनामिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज रियली चेंजिंग एवरी डे, ओके। हम एज अ डिजिटल मार्केटर अगेन वी हैव टू बी लिटिल अलर्ट, स्मार्ट एंड अडेप्ट द चेंजेस. हमको चेंजेस जो भी हो रहे हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन cater to them and we can work on the things, ठीक है। जैसे कुछ दिन पहले अगर हम बात करते थे तो वी हैव लॉट ऑफ टूल्स, ठीक है, बहुत सारे टूल्स हम लोग जैसे एज अ डिजिटल मार्केटर वी यूज, क्योंकि अब इतने सारे क्लाइंट्स को जब हम सर्विसेज देते हैं तो हर बार हम लोग हर चीज हैंडल नहीं कर पाते, या बाकी सारी चीजें नहीं कर पाते, या फिर एक छोटा सा अगर मैं बोलूँ, आई हैव अ स्मॉल टीम ऑफ 10 people who are handling all these 300 plus clients, okay.
बस 10 पीपल इतने लोगों को, 10 लोग इतने लोगों को कैसे सर्विस दे पा रहे हैं, तो वी ऑटोमेट स्टफ अलॉट। ओके, हम बहुत सारी चीजें जो है वो ऑटोमेट करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, मतलब एक महीने का पूरा कंटेंट हम क्लाइंट से लेकर जो है हम उसको ऑलरेडी शेड्यूल करके रख देते हैं, मतलब महीने भरे का कंटेंट ऑलरेडी शेड्यूल हो जाता है कि हम लोगों को मैन्युअली हर रोज कुछ ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक टाइम थोड़ा बैठकर हम लोग उसको शेड्यूल कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ वे टू डू इट एंड ऑल। बट अभी तक अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे पेड टूल्स अवेलेबल थे, अभी एक फ्री टूल भी आ गया है जिसको हेल्प से हम लोग वो भी सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें और कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हमको अडाप्ट करते रहना पड़ेगा, नए नए चीजें थोड़ा बहुत सीखते रहना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे मैं बात कर रहा था कि न्यूज़पेपर एड, लीफलेट्स, ब्रोशर्स, हैंडबिल्स, अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो देयर इज नो गारंटी कि हम लोग हमारे जो टारगेट मार्केट है उन तक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं मिलने वाला है, कोई हमको ये नहीं मिलेगा कि ओके कितने लोगों तक ये न्यूज़पेपर ऐड गया, या फिर कितने लोगों ने इसको देखा, कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोग कॉल करेंगे या क्या करेंगे, नो गारंटी एट ऑल। ओके, वही अगर हम बात करते हैं टेलीविजन एड्स और रेडियो एड्स की भी, तो देयर अगेन व्हाट वी डू, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब भी टीवी पर ऐड आता है या रेडियो पर ऐड आता है, ठीक है, मैं तो भाई चेंज कर देता हूँ, आपका नहीं पता, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं कि टेलीविजन या रेडियो पर एड्स आते हैं तो वी चेंज द चैनल्स, वी चेंज द चैनल्स। ठीक है, अब उसमें भी टेलीविजन और रेडियो वालों ने भी एक तरीके से सिंक बैठा लिया है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम हर जगह हमको अब एड्स ही दिखते हैं, so now even if you change the channels you will see the ads. ठीक है, so but there again you don't get statistics or anything else, and कॉस्ट वाइज अगर हम बात करें तो बहुत कॉस्टली है, सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग की मीडियम्स की अगर हम बात करें तो बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। एक सिंपल अगर न्यूज़पेपर ऐड की भी अगर बात करूँ मैं, तो न्यूज़पेपर में अगर मुझे एक छोटा सा पाम साइज ऐड भी देना है तो भी उसका मिनिमम 20-25,000 फॉर अ डे मुझे लगेगा, और उसमें कितनी लीड्स मिलेगी, कितने लोगों तक जाएगा, नो वी कैन नॉट से एट ऑल। ठीक है, ब्रोशर्स, लीफलेट्स भी प्रिंटिंग कॉस्ट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, प्रिंटिंग कॉस्ट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, और सारी चीज़ें हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है ना कि कितना लोग ये करेंगे एंड ऑल। ठीक है, I again request all of you to keep your video off and mute your mic. Okay, so so that's how we can just think of it. Okay, so social media marketing कहे या digital marketing कहे, okay, social media marketing is basically a part of digital marketing. Digital marketing is a very big word or vague term. Okay, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, बहुत वास्ट है। okay, यहाँ पर हम एक कुछ चीजें कवर कर रहे हैं, we'll get to know. Okay, so let's move ahead with some other stuff. We'll see some of the other stuff. What are the prerequisites for let's say social media marketing, or let's say if you want to start your own business in or your own digital marketing agency, या आप अगर कहीं से भी अपना काम करना चाहते हैं तो क्या रिक्वेस्ट्स है या क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, देर आर फ्यू थिंग्स आर देयर। ओके, नो नीड ऑफ स्पेसिफिक एजुकेशन और डिग्री हियर। ओके, ऑफिस की आपको ज़रूरत नहीं है, स्टाफ की आपको ज़रूरत नहीं, कहीं से भी आप काम कर सकते हो, कहीं से भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, कहीं से भी बैठ के आप काम कर सकते हो। द ओनली रिक्वायरमेंट यू हैव इज लैपटॉप, डेस्कटॉप। ओके, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास है। ठीक है, लैपटॉप है तो और बढ़िया है, क्योंकि आप कहीं से भी बैठकर काम कर सकते हो, आप कहीं भी ट्रैवल भी कर रहे हो तब भी काम कर सकते हो। ठीक है, यू कैन हैव अ स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड इंटरनेट कनेक्शन, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड इंटरनेट कनेक्शन, और किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है, आप कहीं पर भी बैठकर अपना काम कर सकते हो। यू कैन स्पेंड योर टाइम with family, you can even when you're on vacations, okay, you can do it from anywhere. okay, और कहीं से भी बैठकर कहीं पर भी आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो। so you can connect anyone from your home or from any place in the world. okay, or from any place in the world. Let me tell you one simple thing. I have most of the clients for digital marketing, most of my clients for digital marketing are from Gulf. okay, तो अब वो तो गल्फ में बैठे हैं, लेकिन मैं यहाँ से बैठकर काम कर रहा हूँ। okay, so that's again a thing. So we can cater clients from anywhere or from any part of the world. okay,
Then what are the things we face generally? We face a lot of issues with marketing, we face a lot of issues with branding, we face a lot of issues with converting leads. Okay, and if we really mean the business, this is, and if we really mean the business, okay, this master class is only for you. Okay, this master class is only for you. So this is the only thing. And let me tell you again that if you're in a business and not in digital marketing, soon you'll be out of business. Okay, so moving ahead with this next slide. So this is basically a marketing flow, या generally हम क्या करते हैं, कैसे हमको ये करना चाहिए, ठीक है. तो this is basically the flow. Okay, तो जनरली क्या होता है कि आप एक ऐड देखते हैं, आप एक फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर आप एक ऐड देखते हैं, तो आपको ऐड दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऐड आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है. एंड व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट वर्क ऑन थिंग्स. ओके, तो लेट्स से आपको एक ऐसे यहाँ पर एक ऐड दिख रहा है, दिस इज योर ऐड. ओके, ऐड दिखता है, आप उसको क्लिक करते हैं, then you will go to let's say a landing page, then you will go to a landing page or a form. Basically a form होता है जहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिलअप करते हो, जहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिलअप करते हो, and those details will go into the CRM. Those details will go into the CRM क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो भी हम चीजें देखेंगे. ओके, so we'll see all those stuff. Okay, basically CRM is customer relationship management. Okay, customer relationship management softwares. Okay, so what we generally do or why we use CRM is उसके क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स है और हमको जरूर यूज करना चाहिए. ठीक है, देखिए कोई भी बिजनेस जो है विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं होता है. ओके, और थोड़ा बहुत अगर हम बिजनेस के लिए खर्चा करने के लिए रेडी नहीं है तो वी शुड नॉट बी इन बिजनेस. ठीक है, एंड बिजनेस में बेसिकली हम खर्चा नहीं करते, बिजनेस में हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं. ठीक है, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उसका हमें रिटर्न्स भी वैसे मिलेंगे. तो वी शुड नॉट worry about the investments. Okay, or we should not only thing is we should use it properly. We should have a proper plan for it and everything like that. Okay, क्योंकि अगर प्रॉपर प्लान नहीं है हमारे पास तो हम लोग डेफिनेटली प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, सारी चीजें नहीं कर पाएंगे. ओके, दैट्स व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू शुड नो द stuff. Okay, so let's move ahead with the slide. तो पहले जो पिक्चर हमने देखा था ये उसी का ब्रॉडर पिक्चर है या उसी को एक्सपांड किया है हमने. ठीक है, तो अब बेसिकली हम क्या करते हैं, तो व्हाट वी डू इज वी रन एड्स. सो वी रन एड्स, वी कैन कॉल इट अ ट्रैफिक सोर्स. ठीक है, तो ट्रैफिक सोर्स हमारा कुछ भी हो सकता है. अब ऐड हम कहाँ रन करेंगे, फेसबुक पर रन कर सकते हैं, गूगल पर रन कर सकते हैं, यूट्यूब पर ऐड दिखा सकते हैं, ट्विटर पर रन कर सकते हैं, लिंक्डइन पर रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रन कर सकते हैं, ठीक है, टिकटॉक पर रन कर सकते हैं, हॉटस्टार पर रन कर सकते हैं. सो वी हैव सो मेनी प्लेटफॉर्म्स. ओके, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से हम एड्स रन कर सकते हैं. ओके, एंड वी कैन ask people or we can fetch people to our landing page. Okay, so ads run करेंगे, advert is the ad. Okay, then people will come to the landing page. landing page में वो जैसे ही डिटेल्स फिलअप करेंगे, landing page में वो जैसे ही डिटेल्स फिलअप करेंगे, they will come to the CRM. वो कहाँ आ जाएंगे, CRM में हमारे आ जाएंगे. CRM में जैसे ही आ गए तो वी कैन सेंड देम द ऑटो रिस्पॉन्डर्स. अब ऑटो रिस्पॉन्डर मतलब क्या होता है, तो कुछ ऑटोमेटिक मेल्स. ठीक है, जैसे उन्होंने लिस्ट से रजिस्टर किया, दे विल गेट अ मेल, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन. ओके, लाइक दैट, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन वगैरह उनको कुछ मेल्स चले जाएंगे. कुछ इवेंट्स अगर आप कर रहे हो तो इवेंट डिटेल्स उनको चले जाएंगे. ठीक है, सो लाइकवाइज यू कैन जस्ट आस्क देम टू फिल इट अप. ओके, then you can send them other emails or newsletters. let's say newsletter will be kind of a mail जो हमने शेड्यूल करके रखे ऑलरेडी. ठीक है, जैसे कल अगर मेरा कोई इवेंट है, कल अगर मेरा कोई बहुत बड़ा इवेंट है या कोई सेमिनार है, we can let's say give them a reminder that okay tomorrow at this time we have a seminar and these are the details or this is the venue and all that. ठीक है, likewise we can send them all, we can give them the pitch या जो भी हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम अटेंड करेंगे. then you can let's say close the people or you can follow them up. ओके, इनकेस अगर कोई वहाँ क्लोज नहीं हो रहा है, यू कैन ऑलवेज फॉलो देम अप. ओके, बिकॉज आपके पास अगर सीआरएम में उनके डिटेल्स है तो उन डिटेल्स को हम कभी भी यूज कर सकते हैं. वी कैन सेंड देम मल्टीपल ईमेल्स, बहुत सारे ईमेल्स हम भेज सकते हैं, बहुत बार हम उनको कॉल कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज हैव अ लीड. बहुत बार क्या करते हैं लोग के दे विल जस्ट बूस्ट द पोस्ट एंड ऑल. पोस्ट बूस्ट वगैरह तो जो होता है वो कम्प्लीटली वेस्ट है. ठीक है, और वो उन्होंने करना चाहिए जिनके पास बहुत पैसा है. ठीक है, I'll share some of the details with you as well. ठीक है, जो मैं बाद में शेयर करूंगा आपके साथ कि कौन सी ऐड हमें रन करना चाहिए, टाइप्स ऑफ फेसबुक एड्स वगैरह जो होती है वो कौन सी ऐड किसके लिए होती है और कौन सा हमने यूज करना चाहिए एंड ऑल. ओके, वो भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो आई विल बी शेयरिंग लॉट ऑफ मटेरियल एंड ऑल द थिंग्स विथ यू.
After the training as well, I will ask you to join the telegram group. एक telegram group हमारा है, तो उसमें I'll ask you to join so that you can keep on we can keep connected, and बाकी सारी चीज़ें मैं continuously share कर पाऊंगा, क्योंकि telegram में क्या है कि बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत बड़ा एक ग्रुप हम वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक व्हाट्सएप एंड ऑल, ठीक है, तो वहाँ लिमिटेशन नहीं है और बहुत सारे ग्रुप को मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो जाता है. सो इट्स बेटर वी कैन कनेक्ट ऑन टेलीग्राम लेटर. Okay, so वो भी बाद में after the training I'll share with you. Okay, so this is how we just go with this. Then moving ahead with the Facebook के Facebook अगर हम देखते हैं तो यहाँ अगर Facebook मार्केटिंग की बात करें तो what are the benefits of let's say Facebook marketing and all. तो Facebook अगर हम देखते हैं तो almost everyone is on there on Facebook. Almost everyone is there on Facebook. हर कोई करीब करीब Facebook पर है. बहुत कम लोग हमको वहाँ मिलेंगे जो आजकल Facebook या Instagram पर नहीं है. Facebook या Instagram पर नहीं है, ठीक है. So almost everyone is there on Facebook and Instagram. We can target filter or we can target your audience or we can filter people. Okay, बहुत इजीली हम उनको फिल्टर कर सकते हैं, बहुत इजीली हम उनको टारगेट कर सकते हैं विद देयर लाइक्स डिसलाइक्स. अब उन्होंने जो जो चीज़ें लाइक की है, कभी लाइक नहीं की है, उनका एज क्या है, प्रोफेशन क्या है, ठीक है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, उनका पे स्केल्स क्या है, उनके बिहेवियर्स क्या है, उनका रिलेशन स्टेटस क्या है, ठीक है, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. Okay, let's say you are a relationship coach and you help people with the relationships and all. Okay, so जो कि आजकल एक अगेन बहुत डिमांड में है, क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप्स में वो चाहे हस्बैंड वाइफ के हो, फादर सन के हो, या बाकी ऑफिशियल मतलब ऑफिस रिलेशंस हो, ठीक है, या आपके कॉर्पोरेट रिलेशंस हो, ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु नीड इट एज वेल, ठीक है. तो अगेन देयर वी कैन हेल्प पीपल ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सो बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग उनको अलग अलग फिल्टर्स पर टारगेट कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पर ये कर सकते हैं. ओके, एंड वी कैन हेल्प देम अ लॉट लाइक दैट. ओके, एंड पीपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वी कैन चूज आवर ओन बजट. वी कैन चूज आवर ओन बजट. ओके, एंड दैट इज अ बिग पार्ट, दैट इज अ बिग लेट्स से एडवांटेज. वी कैन चूज आवर ओन बजट, ठीक है. हम हमारा बजट खुद चूज कर सकते हैं, हम अपना बजट खुद स्टार्ट कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि हमको मिनिमम इतने से ही चलना चाहिए या करना चाहिए, ठीक है. बहुत बार हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि ओके मिनिमम अपने 500 रुपीज या 1000 रुपीज पर डे से अपने ऐड रन करना चाहिए या समथिंग लाइक दैट, बट इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, यू कैन चूज योर ओन बजट. अगर भाई हम 1000 रुपीज पर डे या इस हिसाब से अगर ऐड रन करते हैं तो 30,000 रुपीज महीने का हो जाएगा, ठीक है. एंड इट्स अ बिग थिंग. बट देखिए एक सिंपल है कि आप यू कैन स्टार्ट विथ लेट्स से 100 रुपीज और 80 रुपीज. यू शुड नॉट गो लेस देन 80 रुपीज, बिकॉज वो इंटरनली कैलकुलेट करता है डॉलर में, ठीक है. डॉलर का जो अप्रॉक्स रेट होता है वो 80 रुपीज अप्रॉक्स पकड़ा जाता है, इसलिए जनरली 80 रुपीज के नीचे आप नहीं जाएंगे. बट यू कैन स्टार्ट विद बेयर मिनिमम ऑफ 80 रुपीज पर डे, ठीक है. हाँ, इतना ही है कि आप जितना बजट बढ़ाओगे, इतना ही है कि आप जितना बजट बढ़ाओगे उतना ही एक दिन में आप ज्यादा लोगों को रीच कर पाओगे, ठीक है. इट इज बेटर, वो तब बेटर है जब आप क्या अगर करो कि लेट्स से एक दो दिन में ही आपका बड़ा कोई इवेंट है और आपने ऐड रन नहीं किया, या अभी आपके पास बहुत सारी सीट्स वैकेंट है, बहुत सारे टिकट्स वैकेंट है, ठीक है. देन इट इज बेटर टू इंक्रीज योर बजट, रीच मोर पीपल इन ए डे और टू, ठीक है. एक दो दिन में बहुत ज्यादा लोगों तक अगर आपको पहुंचना है और उनको क्लोज करना है या उनको रजिस्टर करवाना है, then it is okay. Otherwise no need to do it at all. You can start with let's say 80 or 100 rupees. I generally run my ads with 100 rupees per day. Okay, बहुत रेयरली हम लोग बजट इंक्रीज करते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है. और इट्स नॉट ओनली फॉर मी, अगेन आई डू इट फॉर लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स, बिकॉज क्योंकि क्लाइंट्स का पैसा अगर हम बचाएंगे, जितना हम उनको कम बजट में काम रिजल्ट्स देंगे, डेफिनेटली वो हमारे पास ज़्यादा आएंगे, ठीक है. So that's what we do with lot of or nearly every client of mine. Okay, so that's what we do. Then we have a very good option again is we have so many type of ads, ठीक है. बहुत सारे types के हमारे पास ads available है, ठीक है. We have lot of different types of ads available with us. बहुत सारे ads हमारे पास types के ads available है, ठीक है. और इन सारे अलग अलग टाइप्स के एड्स को हम लोग रन कर सकते हैं. लेट्स से सिंगल इमेज और वीडियो ऐड होता है, फिर मल्टीपल इमेज एड्स है जिसको कैरोसेल भी हम लोग कहते हैं, ठीक है. So carousel ads are there, then conversion ads are there, then reach is there, Facebook, then conversion is there, store traffic is there, traffic is there, okay, lead generation is there. So many different types of ads are there, so we can use different types of ads to run, or install ads are also there, okay.
सो ट्रैफिक एड इज देयर, इंस्टॉल एड इज देयर, सेल्स एड इज देयर, ठीक है। क्योंकि ट्रैफिक एड इज बेसिकली फॉर जनरेटिंग ट्रैफिक। अगर कहीं भी आपको ट्रैफिक चाहिए, वो चाहे आपका लैंडिंग पेज हो जहाँ पर आपने से लैंडिंग पेज मतलब बेसिकली वन पेज फॉर्म और वन पेज वेबसाइट, ओके, जहाँ पर आपने एक फॉर्म रखा हुआ है, लोग आकर डिटेल्स पढ़ेंगे एंड दे विल रजिस्टर फॉर द एंड दे विल रजिस्टर फॉर द स्टफ, ओके। और लेट्स से आपका इवेंट या जो भी कोर्स है उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर भी आप देखते हो, जैसे अभी अगर आज भी हम देखते हैं तो बहुत सारे लोगों ने इंस्टा मोजो से रजिस्टर किया है। जो इंस्टा मोजो भी है उसको भी मैंने एक एज अ लैंडिंग पेज ही हमने वहाँ पर क्रिएट किया है या रजिस्टर किया है, ठीक है। सो व्हाट इज इंस्टा मोजो फॉर मी अगेन, इट्स लाइक आपने वहाँ पर डिटेल्स फिलअप किए वाइल साइनिंग अप, पे करते हुए आपने डिटेल्स फिलअप की हुई है, आपका नेम, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर आपने फिलअप किया है, देन यू हैव पेड। तो मेरे पास आपके लीड्स भी आ गई है, आपका डेटा भी आ गया है, एंड आई हैव द पेमेंट एज वेल, ठीक है। तो इट्स लाइक एन ऑनलाइन स्टोर अगेन वी कैन यूज। तो वहाँ पर भी डायरेक्टली हम ऐड रन कर सकते हैं या उसके लिए भी हम डायरेक्टली ऐड रन करके ये कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। देन इंस्टॉल एड्स आर बेसिकली फॉर एप्स एंड गेम्स। अगर आपने कोई ऐप या गेम बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसके इंस्टॉल्स इंक्रीज करने के लिए, उसके डाउनलोड्स इंक्रीज करने के लिए आप इंस्टॉल एड्स रन कर सकते हो, तो आपको उसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। Sales ads are basically for e-commerce people, though just like Amazon, Flipkart and all, so they can work on that, okay. It's not for us. Then let's say if I move ahead, apologies, yeah, so this is a small example, ये एक छोटा सा example है, मेरा एक पुराना ad मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। just wanted to show few details with this ad, ठीक है। ये पुराना ad है, थोड़ा सा 2016 से हमने लिया हुआ है, okay। बट दिस इज लिटिल ओल्ड एड, बट हमने इसलिए यहाँ पर इसको लिया है क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाने थे, कुछ चीज़ें आपको सारे ये करने थे, ठीक है। ओके, सो जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं, ऊपर हमें दिख रहा है, सबसे ऊपर पेज नेम दिख रहा है, दैट्स अतुल पलांदुरकर। देन यू कैन सी सम डिस्क्रिप्शन लाइक आर यू अ ट्रेनर और वांट टू बी अ ट्रेनर, आर यू फेसिंग इश्यूज इन ट्रेनिंग बिजनेस, नॉट गेटिंग लीड्स, very less conversion ratio, do you want to earn 5 lakh per weekend, okay, are you passionate about training and want to learn or want to earn following on your passion, okay। तो ये एक बेसिक हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है, फिर मैंने थोड़ा सा मेरे बारे में लिखा है, ओके। एंड देन एक इमेज लगाया हुआ है हमने यहाँ पर, ट्रेन द ट्रेनर 21 अगस्त पुणे, ओके। देन फ्री सेमिनार वर्थ 25,000 बाय इंटरनेशनल ट्रेनर, लाइक दैट। एक छोटा सा हेडिंग यहाँ पर दिया है, उसके नीचे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, ओके। Is screen visible for everyone? It's already shared. Screen visible है सभी के लिए? Can you guys see the screen? Can you just type in the chat box? I think it is problem with only Satish. Satish, can you just check your internet connection or something? Let me go back. Now, can you see the Facebook marketing screen? Okay. तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं, हमने सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई है। दिस इज बेसिकली एन एड लुक लाइक, दिस इज अ सिंगल इमेज एड, इसको हम सिंगल इमेज एड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने सिंगल इमेज लगाया हुआ है, ठीक है, और कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इमेज के नीचे एक हेडिंग है और उसका एक डिस्क्रिप्शन भी है, ठीक है, और एक लिंक हमें दिख रहा है लेफ्ट साइड में इमेज में, इमेज के नीचे, सबसे नीचे इमेज के नीचे अगर हम देखते हैं तो एक छोटा सा लिंक है, और इमेज के राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो एक बटन है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली स्केलेटन ऑफ इमेज और इमेज ऐड, सिंगल इमेज ऐड के कैसे ऐड दिखता है, क्या होता है, ठीक है। तो जो बटन है बुक नाउ पर क्लिक करने के बाद जो है वो लैंडिंग पेज पर जाएगा या एक फॉर्म ओपन होगा, वहीं पर वो अपने डिटेल्स फिलअप करेगा और रजिस्टर करेगा, ओके। सो दिस इज हाउ द इमेज ऐड लुक्स, ओके। तो हमने यहाँ पर ये किया हुआ है, ठीक है। सो अब इस ऐड का अगर हम ये देखते हैं कि ओके रिजल्ट्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैंने दिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई हैव शोन इट, ओके, दिस इज हाउ वी गॉट इट, ओके। तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ हमने पूरा जो कैंपेन रन किया हुआ था, तो इस कैंपेन का अगर मैं बजट देखता हूँ,
ठीक है। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है डेली बजट वॉज 1000 रुपीज, ठीक है, डेली बजट हमने 1000 रुपीज रखा था, क्योंकि और अगर ऐड देखते हो आप तो हमने क्योंकि मुझे बहुत लोगों तक रीच करना था, मुझे बहुत लोगों तक कनेक्ट करना था, इसलिए मैंने उसका बजट उस टाइम पे 1000 रुपीज रखा था, ठीक है। बट इन जनरल हम एड 1000 रुपीज से रन नहीं करते हैं। डेली बजट अगर यहाँ देख रहे हैं तो अभी 1000 रुपीज दिखता है, ठीक है। बट इन 1000 रुपीज अगर मैं देखता हूँ, हमने इस एड को अगेन देन रोक दिया था 2-3 घंटे में, क्योंकि around 2-3 hours we could reach only in 2-3 hours we could reach approx 4000 people, okay, only in 2-3 hours we could reach approx 4000 people, that is 3890, okay। और टोटल स्पेंड अगर मेरा देखते हैं तो दैट वाज अप्रॉक्स 80 रुपीज, 280 रुपीज, दैट वाज अप्रॉक्स ओनली 280 रुपीज, ठीक है। तो टोटल मेरा स्पेंड अगर देखते हैं, एक्सपेंडिचर भी अगर देखते हैं, ठीक है, तो दैट वाज ओनली अप्रॉक्स 280 रुपीज, ठीक है। तो अप्रॉक्स 280 रुपीज में हमने अगर देखते हैं, ठीक है, सो वी स्पेंट ओनली 280 रुपीज, दो माई बजट वाज 1000 रुपीज, मेरा बजट 1000 रुपीज था, ठीक है। अब हमने 280 रुपीज स्पेंड किए एंड आई वाज सैटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स, सो आई जस्ट स्टॉप्ड माय एड, ठीक है। तो उस दिन के लिए हमने उसको स्टॉप कर दिया था, देन अगेन वी रन इट फॉर सम अदर टाइम, ओके। सो दैट्स हाउ वी कैन जस्ट डू इट, ओके। तो उस तरीके से हम लोग रन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। देन अगेन इफ यू सी, यहाँ मुझे सारी डिटेल्स मिल रही है जो हमें बाकी जगह नहीं मिलती है। हमें अगर यहाँ देखते हैं तो हमें सारी डिटेल्स यहाँ पर मिलती है, वी गेट लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे यहाँ मुझे दिख रहा है कि हाउ मेनी वुमेन वेयर देयर, जिन कितने वुमेन्स ने मेरा एड देखा, कितने मेंस ने मेरा एड देखा, ठीक है, सॉरी कितने मेंस ने मेरा एड देखा, ठीक है। सो हाउ मेनी वुमेन वेर देयर, हाउ मेनी मेंस वेर देयर हु सॉ माय एड, एंड हाउ मेनी पीपल वेर देयर हु हैव नॉट स्पेसिफाइड देयर जेंडर ऑन फेसबुक, ठीक है। क्योंकि फेसबुक पर हम जेंडर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग डोंट वांट, समटाइम्स सम पीपल डोंट प्रीफर, मींस दे डोंट प्रीफर टू स्पेसिफाई देयर जेंडर, ठीक है। तो वो भी हमको मिल रहा है, क्योंकि कितने लोग हैं जिन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है लेकिन एड देखा है, ठीक है। सो आई कैन सी एंड आई कैन गेट ऑल दोज डिटेल्स, मुझे ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मिलती है, ठीक है। नॉट ओनली दिस, मुझे बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल इफ आई मूव अहेड, ठीक है, आई कैन सी ऑल दोस डिटेल्स लाइक किस एज ग्रुप के लोगों ने मेरा ऐड देखा है, किस एज ग्रुप के लोगों ने ऐड देखा है। जैसे यहाँ अगर मैं देखता हूँ 18 to 24 कितने लोग थे, देन 25 to 34 कितने लोग थे, है ना, ठीक है। बाकी अगर मैं देखता हूँ लाइक 35 to 54 सॉरी 44 कितने लोग थे, ठीक है, 45 to 54 कितने लोग थे, ठीक है, लाइकवाइज ऑल दैट, ठीक है। यहाँ बाकी अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ ज्यादा लोग अगर नहीं है, ठीक है, लेट्स से 54 55 to 65 प्लस, ठीक है, देयर आर नॉट मोर पीपल, बहुत कम लोग वहां पर है, ठीक है। तो अगेन आई कैन थिंक ऑफ इट, या फिर इन स्टैटिस्टिक्स से, इन इनसाइट से हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि ओके ये लोग वैसे भी अगर देखते हैं तो 55 प्लस लोग जो है वो ज्यादा पढ़ने के लिए या ट्रेनिंग्स के लिए उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं एंड ऑल दैट। तो आई कैन अगेन स्टॉप माई शेयरिंग, मतलब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं उनको ऐड नहीं दिखाऊंगा, तो आई विल नॉट शो माई एड्स टू देम, ठीक है। मैं उन लोगों को एड्स नहीं दिखाऊंगा और मैं मेरा उतना पैसा सेव कर सकता हूँ। अगेन आई कैन सेव माई मनी देयर एज वेल, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं एंड वी गेट ऑल द नंबर्स, हमें सारे नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है, हमें सारी चीजें देखने को मिल रही है। अगेन आप लोग भी इससे हम लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑडियंस कहाँ पर है, क्योंकि हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि हम लोग ऐड रन कर देते हैं, जनरली ध्यान नहीं देते हैं, देन वी कैन एटलीस्ट अगर वहां पर हमने देखा कि ओके, बाद में हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑडियंस कहाँ पर ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, कितने लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो उस एज ग्रुप के लोगों को पर्टिकुलरली हम टारगेट कर सकते हैं आफ्टर अनदर एड्स, और बाकी सारे एड्स से फिर हम उनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। विथ न्यू एड्स वी कैन टारगेट देम ओनली, okay. Likewise that if I move ahead, okay, so this is again one more statistics, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो मुझे ये भी पता चल रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने डेस्कटॉप या लैपटॉप से अटेंड किया था, या फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करते हैं फॉर फेसबुक, एंड कितने ऐसे लोग हैं जो कि डेस्कटॉप या लैपटॉप की जगह मोबाइल फोन यूज करते हैं अपना, ठीक है, फेसबुक के लिए, या जिन लोगों ने मेरा एड डेस्कटॉप या लैपटॉप पे देखा, या जिन लोगों ने मेरा एड मोबाइल पर देखा। तो अगेन आई कैन सी हियर ओनली 73 पीपल आउट ऑफ 3890 और अप्रॉक्स 4000 पीपल, ओनली 73 पीपल वर देयर हु वर यूजिंग लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स, ठीक है। तो सिंपल है कि मैं अगर नेक्स्ट टाइम इन लोगों को ऐड नहीं दिखाऊं तो भी चलेगा, ठीक है। आई कैन अगेन सेव माय मनी देयर एज वेल, ठीक है। सो वहां पर भी मैं उसको सेव कर सकता हूँ, ओके। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर मिलती है, उस तरह से हमको बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर मिलते हैं,
और उन सारी डिटेल्स को, सारे इंसाइट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और ऑलवेज स्टडी करना चाहिए हमने, ठीक है, क्योंकि हमारा हर एड के बाद हमने उसको स्टडी करना चाहिए कि व्हाट वर द रिजल्ट्स, क्या क्या हमारे इंसाइट्स थे, क्या क्या हमने उसमें किया है, ठीक है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट, और बाकी जो हम नेक्स्ट एड रन करने वाले हैं उसमें हम अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर सके, उसमें हम अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर सके, सारी चीजें हम लोग उसमें इवॉल्व कर सके, इम्प्रूव कर सके, ठीक है। एवरी टाइम वी रन द एड वी डू द सेम थिंग, हर एड के बाद हम हमारा स्ट्रैटेजी इम्प्रूव करते हैं, या बाकी सारी चीजें करते हैं, या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। समटाइम्स बहुत सारी चीजें हो सकती है कि कभी कभी कोई चीजें चले, कोई ना चले, है ना, तो वी हैव टू वर्क ऑन एवरीथिंग, वी हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग, कीप ऑन वर्किंग on that. Okay, so moving ahead with the, let's say, YouTube, ठीक है, तो why we should use YouTube, कि देखो YouTube अगर बात करें तो it's the second largest search engine in the world, second largest search engine after Google we can say, or in the world, okay, क्योंकि अगेन देखा जाए तो गूगल प्रोडक्ट है, या फिर गूगल पर भी अगर आप देखते हो, बहुत बार अगर हम गूगल करते हैं, ठीक है, सो इवन ऑन गूगल you get lot of stuff like, okay, I'll tell everything, ठीक है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। सो यूट्यूब पर भी अगर हम देखते हैं तो यूट्यूब पर भी बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, और सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। इवन गूगल हम अगर बहुत बार कुछ करते हैं तो गूगल पर भी क्या होता है कि अगर हम मोस्टली, अब आपने देखा होगा, अगर हम हाउ टू से कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, सो हर बार हमें कुछ ना कुछ वीडियो के लिंक्स भी गूगल प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अभी बहुत जल्दी यूट्यूब पर भी गूगल के लिंक्स आने वाले हैं। जैसे यूट्यूब पर अब जब हम कुछ सर्च करते हैं तो यूट्यूब बेसिकली क्या करता है कि सिर्फ वीडियो लिंक्स हमें शेयर करता है, बट बहुत जल्दी यूट्यूब भी हमें वेबसाइट्स और बाकी सारी लिंक्स भी शेयर करने वाला है, ठीक है। सो दैट्स अ न्यू थिंग फॉर एवरीवन विल बी देयर, ओके। और गूगल ऑलरेडी इसको टेस्ट कर रहा है बहुत सारी जगहों पर, और बहुत जल्दी उसको लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड अगर हम देखते हैं तो यूट्यूब पर डेली व्यूज अगर हम देखते हैं तो इट्स अ बिग नंबर, 4 बिलियन व्यूज पर डे, 4 बिलियन व्यूज पर डे, इट्स अगेन अ ह्यूज नंबर, ठीक है। एंड 92% B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर्स अगर हम देख बोलते हैं तो वो रोज वीडियो देखते हैं, ठीक है, हर बार वो वीडियोस देखते हैं, ओके, और ये करते हैं। एंड दिस वन इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, 78% पीपल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब 78% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड goes and watch at least one video every week, ठीक है। जो वीडियो, मतलब जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं उसमें से अगर हम देखा जाए तो 78% पॉपुलेशन एक वीडियो तो भी एक वीक में यूट्यूब पर देखते ही देखते हैं। इज दैट अ बिग नंबर? बहुत बड़ा नंबर है कि मतलब 78% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हु यूजेस इंटरनेट, ठीक है, जितने भी लोग इंटरनेट यूज करते हैं उसमें से 78% पॉपुलेशन की भी अगर हम बात करें तो वो लोग भी एटलीस्ट वन वीडियो, एक वीडियो वीक में एक बार यूट्यूब पर देखते ही देखते हैं। इसलिए हम लोगों को यूट्यूब पर होना ही चाहिए अगर हमें अपना ब्रांडिंग क्रिएट करना है, हमें अगर मार्केटिंग करना है, वो चाहे हम किसी भी फील्ड से हो, हम चाहे स्टूडेंट हो, हम चाहे एंटरप्रेन्योर हो, हम चाहे टीचर हो, हम चाहे लेक्चरर हो, हम चाहे मार्केटर हो, नेटवर्क मार्केटर हो, या हम कोई भी बिजनेस में हो, ठीक है, या कोई भी चीज में हो, ठीक है, वी शुड बी देयर ऑन यूट्यूब और वी शुड बी देयर ऑन इंटरनेट, ठीक है। हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस, हमारा सोशल प्रेजेंस होना ही चाहिए। अगर हमें मार्केटिंग करना है, अगर हमें सेल करना है, अगर हमें इनकम करना है, अगर घर पे बैठ के करना है, ठीक है, तो डेफिनेटली वी शुड हैव दैट थिंग विद अस, ठीक है। तो वी शुड डेफिनेटली हैव ऑन थिंग्स, ओके। यूट्यूब वीडियोस को बहुत जरूरी है, यूट्यूब वीडियोस बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर आप माइक्रो वीडियोस बना सकते हो, माइक्रो वीडियोस मींस यूट्यूब पर जनरली व्हेन आई से वीडियोस दैट मींस आई विल से मोर देन 10 मिनट्स वीडियोस बेसिकली, बट आप छोटे वीडियोस भी डेफिनेटली पब्लिश कर सकते हो, नॉट नेसेसरी, ठीक है। बट छोटे वीडियोस को कैसा होता है कि व्यूज आपका उतना काउंट नहीं होता है, या फिर जो आपका वॉच टाइम होता है वो उतना काउंट बढ़ेगा नहीं, ज्यादा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अगर वही आपका वीडियो ज्यादा बड़े है तो लोग उनको देखेंगे, और कैसा है कि आपका जो वॉच टाइम है वो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी यूट्यूब पर बीच में बहुत लोगों ने बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस की थी, इसलिए गूगल ने या यूट्यूब ने पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट कर दी है। अभी यूट्यूब ने सिंपल स्ट्रेटजी या एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि आपका जो ये है, आपका जो यूट्यूब चैनल है उसमें मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 व्यू आवर्स, मतलब आपका जो वीडियो है, अगर आपका 1 घंटे का वीडियो है तो वो वीडियो
4000 घंटे देखा जाना चाहिए लोगों ने, मतलब 1 घंटे का अगर वीडियो है तो 4000 घंटे का वो वीडियो देखना चाहिए लोगों ने, मतलब 4000 लोगों ने कम से कम वो वीडियो पूरा देखना चाहिए, तब जाकर आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज होगा, मतलब एलिजिबल होगा अगर मोनेटाइजेशन के लिए। ओके, और ये विद इन 12 मंथ्स होना चाहिए, विद इन 12 मंथ्स होना चाहिए, तब जाकर आप उसको ये कर सकते हो, ठीक है, एलिजिबल होता है। तो हर 12 महीने में जनरली या उसमें वो चेक करता रहता है, हर महीने वो जनरली चेक करता है, ठीक है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, सो दे गोना रिव्यू इट एवरी टाइम, बीच बीच में वो रिव्यू करते रहते हैं। ओके, सो यू हैव टू मेंटेन दैट स्टफ, इसलिए हमको थोड़ा रेगुलर भी रहना पड़ेगा। लेट मी शो यू सम अदर स्टैटिस्टिक्स बिफोर आई मूव अहेड। तो मैं थोड़ा सा एक और स्क्रीन आपसे शेयर करूंगा, लेट मी शो यू दैट स्टैटिस्टिक्स एज वेल, सो दैट यू शुड नो थिंग्स कि क्या चल रहा है, क्या चीज़ें ऑलरेडी ऑल ओवर वर्ल्ड हो रही है, ठीक है। सो यू शुड नो अ फ्यू थिंग्स। सो दिस इज अ पोर्टल, दिस इज अ वेबसाइट, डेटा रे पोर्टल, ठीक है। यहाँ पर ये जनरली every 2 months, every month जनरली दे ट्राई टू चेंज, ओके, एंड सर्वे करके वो फिर पूरा रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो यहाँ पर अप्रैल 2020 का इन्होंने पूरा रिपोर्ट पब्लिश किया हुआ है, डिजिटल अप्रैल 2020, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं, आई जस्ट शो यू सम ऑफ द स्लाइड्स दे हैव शेयर्ड, ठीक है। सो यहाँ अगर हम देखते हैं अप्रैल 2020 में, अगर देखते हैं ओवरव्यू ऑफ ग्लोबल इंटरनेट यूजेज, ठीक है, कि टोटल इंटरनेट यूजेज ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। तो 4.57 बिलियन पीपल आर यूजिंग इंटरनेट, 4.57 पीपल आर यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। इतने सारे लोग जो है वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। उसमें से अगर हम देखते हैं तो मतलब टोटल अगर हम देखते हैं तो इंटरनेट यूजर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन, अगर ग्लोबल पॉपुलेशन का परसेंटेज देखते हैं तो 59%। मतलब हम अगर कहते हैं कि एवरी पर्सन इज ऑन इंटरनेट, तो एवरी पर्सन इज नॉट देयर ऑन इंटरनेट, इट्स नॉट इवन 60%, इट इज लिटिल लेस देन 60%, 59% पीपल आर यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। एनुअल ग्रोथ अगर हम देखते हैं 1 ईयर में कितना उसका हुआ है, तो 7.1% ईयरली ग्रोथ है, मतलब 301 पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इंटरनेट एज दैट ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर इतने लोग नहीं थे, अब उतने 301 मिलियन पीपल हैव इंक्रीज्ड, ओके। और इस मंथ में अगर एवरेज अगर हम देख रहे हैं, तो अप्रैल का भी अगर हम एवरेज देखते हैं तो 6 hours 39 minutes is the average time people have spent on internet, ठीक है। 6 hours 39 minutes is the average time people have spent on internet, ठीक है। इट्स अ बिग नंबर, करीब करीब 7 घंटे रोज लोग इंटरनेट पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने डेफिनेटली उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि इतना लोग अगर इंटरनेट पर टाइम लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो वी कैन show them our ads, we can market our stuff, we can create lot of other stuff, ठीक है। हम हमारा ब्रांडिंग कर सकते हैं, हम अपना मार्केटिंग कर सकते हैं और इजीली लोगों को क्लोज कर सकते हैं, एंड वी कैन डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक दैट, ओके। देन मूविंग ऑन टू अनदर स्लाइड इज लाइक, ओके, सोशल मीडिया का यूज अगर हम देखते हैं वर्ल्ड में, ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं 4.57 बिलियन पीपल आर यूजिंग इंटरनेट। out of 4.57 billion, if we see 3.81 billion people are using social media, 3.81 people are using social media, ठीक है। अगेन वर्ल्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 49% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज यूजिंग सोशल मीडिया, 49% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज यूजिंग सोशल मीडिया। 8.7% इंक्रीज है लास्ट ईयर से, ठीक है, 8.7% इंक्रीज है लास्ट ईयर से। टोटल नंबर ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स अगर हम देखते हैं जो अपने फोन के थ्रू यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सोशल मीडिया यूजर 3.81, बट टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर यूजिंग सोशल मीडिया वाया देयर मोबाइल फोन्स इज 3.76%, मतलब 99% लोग जो है अपने मोबाइल से सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। नो वन इज यूजिंग, ओनली 1% इज यूजिंग लैपटॉप और डेस्कटॉप, ओनली 1% इज यूजिंग लैपटॉप और डेस्कटॉप, ठीक है। तो यहाँ से भी हमको स्टैटिस्टिक्स से भी समझ में आता है कि जब भी हम एड रन कर रहे हैं तो वी शुड नॉट रन आवर एड्स फॉर लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स, क्योंकि ओनली 1% पीपल आर देयर, सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज कर रहे हैं हमारे मतलब सोशल मीडिया यूज करने के लिए, ठीक है। तो देयर इज वेरी रेयर चांसेस टू कि हमारा एड उन तक जाएगा या ऑल दैट, ठीक है। और जाता भी है तो कितने लोग उसमें से इंटरेस्टेड होंगे एंड ऑल दैट, ओके, दे मे बी और दे मे नॉट बी, ठीक है। तो लेकिन अगर एड हम उनको शो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। सो वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ इट बिफोर शोइंग द एड्स देन, ओके। देन अगर हम बाकी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम देखते हैं कि कितने मोबाइल यूजर्स है, दिस इज अगेन वेरी गुड फॉर
पीपल हु आर वर्किंग इन मोबाइल इंडस्ट्री या एंड्रॉयड या बाकी सारी चीज़ों पर अगर काम कर रहे हैं मोबाइल डेवलपर्स है तो उनके लिए भी ये स्लाइड बहुत काम का है, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी गुड फॉर डिजिटल मार्केटर्स एज वेल एंड द सॉफ्टवेयर और आईटी इंडस्ट्री एज वेल, क्योंकि नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ यूनिक मोबाइल यूजर्स या यूनिक हैंडसेट्स, ठीक है, 5.16 people are using mobiles, 5.16 billion people, okay, so it's a big number again. 66% population of the world, 66% population of the world is using mobile phones. Then number of mobiles unique including IoT devices अगर हम देखते हैं तो IoT को अगर छोड़ दिया जाए, एक्सक्लूड कर दिया जाए, IoT डिवाइसेस मतलब वो जैसे क्योंकि IoT मतलब इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस, इट्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या IoT मतलब इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस आप कह सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आजकल हमारे यहाँ अगर हम देखते हैं तो AC भी हम लोग रन कर सकते हैं इंटरनेट से या अपने फोन के ऐप से या बाकी सारी चीजें, ठीक है। सो दैट इज IoT डिवाइस, बेसिकली इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस, ओके। सो अगर उनको छोड़ भी दिया जाए तब भी अगर हम देखते हैं तो 7.98 बिलियन मींस अप्रॉक्स 8 बिलियन नंबर ऑफ मोबाइल कनेक्शंस आर देयर, ओके। सो मोबाइल कनेक्शंस आर देयर। देन मोबाइल कनेक्शंस एज अ परसेंटेज अगर हम देखते हैं पॉपुलेशन के वाइज, क्योंकि देखा जाए तो हमारा पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है लेकिन 66% पॉपुलेशन ही, ओनली 66% पॉपुलेशन ही यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो है वो मोबाइल यूज कर रहे हैं। लेकिन उस 66% के हिसाब से भी अगर हम मोबाइल कनेक्शंस देखें तो 103% मोबाइल कनेक्शंस आर देयर, ठीक है। दैट मीन्स हर कोई एक से ज्यादा मतलब अगर हम देखा जाए तो एक से ज्यादा हम कनेक्शंस यूज कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज 1.55 unique connections are there, on an average 1.55 unique connections are there, okay, so it's really a big number again, it's really a big number again. Then if I move ahead and if we talk about let's say e-commerce activity or e-commerce thing या फिर इंटरनेट पर सेल्स की अगर हम बात करा जाए सीधा सीधा कि इंटरनेट के थ्रू सेल होगा या नहीं होगा, क्या हम अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे, क्या हम अपनी सर्विसेज बेच पाएंगे और वट एवर। इट्स ई कॉमर्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं है या सिर्फ अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे ही नहीं है। ई कॉमर्स इज फॉर ऑनलाइन सेल्स बेसिकली, तो ऑनलाइन किसी भी तरीके का अगर हम सेल देखते हैं, ठीक है, तो 81% पीपल मींस देयर आर सर्च ऑनलाइन फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रोडक्ट और सर्विस टू बाय फ्रॉम एनी डिवाइस, ओके। सो 81% पीपल आर डूइंग इट, ठीक है। Then if you see the people visited an online retail store for a or online store, okay, 90% people visit stores, ठीक है। कितने लोग शॉपिंग ऐप यूज करते हैं फोन पर अगर हम देखता जाए तो 66% लोग जो है शॉपिंग ऐप यूज करते हैं अपने फोन पर, ठीक है। परचेज्ड अ प्रोडक्ट ऑनलाइन यूजिंग एनी डिवाइस अगर हम देखते हैं तो अगर कितने लोग देखते हैं कि जिन्होंने ऑनलाइन कुछ ना कुछ परचेज किया है तो 74% पीपल हैव परचेज समथिंग ऑनलाइन, ठीक है। और अगर कितने लोग देखते हैं हम लोग के वाया मोबाइल कितने लोगों ने ऑलरेडी परचेज किया है, तो वाया मोबाइल भी अगर हम देखते हैं तो 51% ऑफ द पॉपुलेशन हैव परचेज समथिंग वाया मोबाइल, ओके। सो दैट्स अगेन अ बिग नंबर, तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। तो दिस वाज अ बेसिक स्टफ, this was how digital 2020 is or April 2020 is, okay. And that's again very good statistics or very damn good stuff, okay. So everything is growing vertically, everything is growing exponentially, ठीक है। और इसलिए भी हमको सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग का यूज डेफिनेटली करना चाहिए हमारे ब्रांडिंग के लिए, हमारे सर्विसेज के लिए, हमारे प्रोडक्ट प्रमोशंस के लिए, और all for everything we can do here, okay, and we can generate the revenue like anything, okay, fine. So let's move ahead, let's talk about YouTube के YouTube से ही कितना लोग और कमा रहे हैं, okay. These are again some old statistics I have taken. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1.79 मिनिमम was there and बिगेस्ट इज अगर हम बात करते हैं तो टोनी रॉबिन्स को अगर आपने सुना है, टोनी रॉबिन्स इज वन ऑफ द number one, is he is the number one coach in the world, okay, and one of my gurus again. So he earns approx $28,000, $29,000 per month, okay. Then if we talk about Sneh Desai, he approx earns $17,000 from YouTube. Then Vivek Bindra अगर हम देखते हैं तो Vivek Bindra again earns approx $40,000 from YouTube, okay. So it's again a big number, $40,000 from YouTube, okay. It's really a big number again. Then अगर हम मूवीज की बात करें तो मूवीज या उनके सॉन्ग्स हम हमेशा यूट्यूब पर देखते हैं, या यूट्यूब पर बहुत सारे
वीडियो सॉन्ग्स हम देखते हैं, तो इट्स नॉट ओनली फॉर प्रमोशन, इट्स नॉट ओनली फॉर प्रमोशन, दे वांट टू मेक सेल्स आउट ऑफ, दे वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट एज वेल, ठीक है। उसमें से उनको बहुत अच्छा रेवेन्यू भी मिलता है, इसलिए भी वो वहां पर प्रमोशन करते हैं और परचेस करते हैं, मतलब पब्लिश करते हैं, क्योंकि उनको रेवेन्यू भी मिल रहा है, उनके व्यूज भी बढ़ रहे हैं, उनका प्रमोशन भी हो रहा है, ठीक है। दंगल, अगर आपको मूवी याद है तो हमने ये दंगल का टाइटल ट्रैक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मतलब स्टैटिस्टिक्स निकाला था, ठीक है। तो दंगल का अगर हम स्टैटिस्टिक्स यहाँ देखते हैं तो बेसिकली अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो एक मतलब विद इन अ वीक, 1 वीक हमने ये स्टैटिस्टिक निकाला था कि विद इन अ वीक, ठीक है, हमने स्टैटिस्टिक निकाला कि दंगल ने जब इन्होंने पहला टाइटल ट्रैक इनका पब्लिश किया था, आफ्टर दैट, ओके, सो विद इन अ वीक हमने उसका ये निकाला था, ओके। सो इफ यू कैन सी द नंबर ऑफ व्यूज, इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ व्यूज एंड द रेवेन्यू इन अ वीक, ठीक है। एक वीक में $30,000+ इन्होंने कमा लिए थे एक सॉन्ग से, एक वीक में $30,000+ फ्रॉम वन सॉन्ग। अगर इस मूवी में 5-6 भी सॉन्ग्स होंगे, ठीक है, तब भी बहुत हो गया, तब भी अच्छा खासा रेवेन्यू वहां से आ गया है, ओके। सो इट्स लाइक दैट। देन इफ आई टॉक अबाउट कुकिंग, ठीक है, बहुत सारे लोग या फिर अभी हम यहाँ देखते हैं हमारे ग्रुप में फीमेल्स भी है, गीतांजलि इज देयर, प्रांजलि इज देयर, ओके। सो वी हैव एंड लॉट ऑफ माय मेल फ्रेंड्स आर आल्सो देयर, ओके। बट इफ आई टॉक अबाउट कुकिंग, आई थिंक नॉट एवरीवन इज इनटू कुकिंग, बट अगर हमें कहा जाए कि क्या आपको मैगी बनाना आता है, ठीक है, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि क्या आपको मैगी बनाना आता है, क्या आपको आता है, कैन यू रिप्लाई इन द चैट, किसको मैगी बनाना आता है यहाँ पर? आई डोंट थिंक कि मैगी बनाने के लिए आपको ट्यूटोरियल की जरूरत है या बताने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत है। क्या आपको मैगी बनाना आता है? आई थिंक सबको ही आता है। मैगी और चाय आई थिंक ऐसी चीज है जो सबको ही आता है, ऐसा शायद कोई ना हो जिसको मैगी या चाय बनाना नहीं आता, मतलब इंस्टेंट नूडल्स एंड चाय बनाना नहीं आता है ना। सो आई थिंक एवरीवन इज देयर, ओके। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है, तो क्या हमें अगर ये चीज आती है तो हमें, दैट्स ग्रेट गाइस, ओके। सो अगर हमें ऑलरेडी मैगी या चाय बनाना आता है तो क्या मुझे इसके वीडियोस की जरूरत है? क्या मुझे इनके वीडियोस की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। बट मैंने ये एक स्नैपशॉट आपके लिए लिया है, ठीक है। एंड इफ यू कैन सी द नंबर ऑफ व्यूज, अगेन दिस इज एन ओल्ड स्नैपशॉट, ओके, बट इफ यू सी द नंबर ऑफ व्यूज, 17 लाख व्यूज है, 17 लाख व्यूज है। एंड दिस इज नॉट द टॉप मोस्ट वीडियो, ये टॉप मोस्ट वीडियो नहीं है, ये टॉप मोस्ट वीडियो नहीं है, ठीक है। बट ये जो वीडियो है ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि अगर आप यहाँ इसका स्नैपशॉट देख रहे हो तो ये रोड साइड स्टॉल पर शूट किया हुआ है, रोड साइड स्टॉल पर शूट किया है। फिर भी अगर व्यूज देखा जाए तो 17 लाख के ऊपर व्यूज है और 2,500 से ज्यादा डॉलर उसने इस एक वीडियो से कमा लिए, एक वीडियो से $2,500, ठीक है। अगर ऐसे और भी वीडियोस उसके चैनल पर है तो हाउ मच ही इज अर्निंग, हाउ मच ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट, ठीक है। कितना अच्छा रेवेन्यू ऑलरेडी वो उस चैनल से कमा रहे हैं, है ना। तो ऑल दोस थिंग्स आर देयर एंड वी कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। हम लोगों को भी देखना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमें भी बहुत सारी चीजें जो है हम लोग उसमें ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, इसके लिए मैं आई एम रियली वांट टू से सॉरी फॉर, क्योंकि कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, ठीक है। बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस, क्योंकि कुकिंग ही नहीं, टेक्निकल्स ही नहीं है, कोडिंग ही नहीं है, मार्केटिंग ही नहीं, हर तरह के वीडियोस जो है यूट्यूब पर आते हैं और लोग देखते हैं, हर तरह के वीडियो यूट्यूब पर आते हैं और लोग देखते हैं। क्योंकि देखा जाए तो मैगी वाले वीडियोस को 17 लाख व्यूज थे और इस वीडियो को अगर हम देखते हैं तो इस वीडियो के है 21 लाख व्यूज है, 21 लाख व्यूज है। और रेवेन्यू भी अगर हम इसका देखते हैं तो $3,200, $3,200, $3,200 इस वीडियो से इसने कमा लिए, है ना। $3,200 एक वीडियो से, इसके और भी वीडियोस ऐसे होंगे उसमें से उन्होंने कमाया ही होगा डेफिनेटली, ठीक है। सो हाउ दे आर अर्निंग लाइक दैट, ठीक है। तो यू कैन पुट एनी वीडियोस, जो भी वीडियोस आपको चाहिए आप उसको अलग अलग तरीके के वीडियोस आप पब्लिश कर सकते हो एंड यू कैन अर्न लाइक एनीथिंग, ओके। You should definitely start with the things. Let me share some of the testimonials for you guys, okay. I run a program called Digital Blueprint. Digital Blueprint नाम से मेरा एक बेसिकली एक प्रोग्राम होता है बड़ा सा, ठीक है। उस प्रोग्राम को इन्होंने अटेंड किया था, हिज अक्षय वंजारी फ्रॉम पुणे, ओके। तो वो 5 दिन का फुल प्रोग्राम होता है, 5 days फुल, 8 to 10 hours एवरी डे, ओके।
और वहाँ बैठकर हम सारी चीज़ें करवा कर लेते हैं, सारी चीज़ें हम करवा कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली अ फुल डे प्रोग्राम फॉर 5 days, ठीक है। सो इट्स बेसिकली मिनिमम 40 hours प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें हम बैठकर सारी चीज़ें मैनुअली करा लेते हैं, पढ़ाते हैं, करवा कर भी लेते हैं, एंड वी डू लॉट ऑफ अदर स्टफ्स लाइक दैट। तो इन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड किया था, एंड देन आफ्टर दैट 5 days, मतलब 1 April to 5 April वाज द प्रोग्राम, एंड 6 April को ही उनका एक मैसेज हमको मिला शाम में, ठीक है, कि ओके सर उनका पहला सेल हो गया है, मेरा पहला सेल हो गया है, ठीक है। अगेन इनका स्टोरी अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो एक सिंपल सा स्टोरी है, इनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, कुछ नहीं थे, ठीक है। अब कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, ठीक है। सो डिस्कशन में हमारे मुझे पता चला कि ओके उनका एक फ्रेंड है जिनका शूज का शॉप है, उनके एक फ्रेंड है जिनका शूज का शॉप है। तो मैंने उनको सिंपल सा सजेशन दिया कि आपके फ्रेंड से बोलो कि कुछ प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए स्पेयर में रखे, ठीक है, उनकी फोटोज निकाल लो और ईबे पे या इस पर डाल दो, ठीक है। तो उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ टाइप कर लिया, कुछ फोटोज जो है उन्होंने ईबे पर डाल दी, ठीक है। और जो शू था उनको ऑर्डर प्लेस हो गया, दूसरे दिन उनको ऑर्डर मिल गया, ठीक है। उन्होंने वो शू परचेस किया 700 में, परचेस किया 700 में, 1499 मतलब 1500 रुपए में उन्होंने बेच दिया, डबल द प्रॉफिट, ठीक है। उनके फ्रेंड का ही शॉप था तो उसने उसे 700 पे दे दिया, उन्होंने डबल प्रॉफिट में 700 रुपीज में डायरेक्टली ईबे पर बेच दिया, ठीक है। सो दैट वाज अ स्टोरी। Then this is again from Sahil Mehra. This is from Sahil Mehra who is from Jabalpur. इन्होंने हमारा 2 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया था। इनके कॉलेज में बेसिकली हमने डिजिटल मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप लिया था, ठीक है, जबलपुर में। तो उन्होंने वहाँ पर अटेंड किया था, ठीक है। ही रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज अ सेलर ऑन अमेजॉन एंड बुक्स का उनको स्टार्टेड सेलिंग बुक्स। तो हमने उनको बुक्स का ऑप्शन दिया था, क्योंकि बुक्स के लिए जीएसटी नहीं लगता है। बुक्स के लिए अगर आप सेल कर रहे हो प्रिंटेड बुक्स तो उसके लिए जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। सो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट सेलिंग दोज, ठीक है। तो ही स्टार्टेड सेलिंग बुक्स एंड ही गॉट हिज फर्स्ट ऑर्डर। दिस वन इज अगेन फ्रॉम साहिल मेहरा, ठीक है। He wanted to start his own digital marketing agency and digital marketing services, okay. So digital marketing agency या digital marketing services उन्होंने start करना चाहिए था, करना था उनको। तो उनको हमने गाइड किया कि कैसे कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो आई आस्क्ड हिम टू रजिस्टर हिमसेल्फ ऑन freelancer.com पे उन्होंने रजिस्टर किया। जनरली मैं सजेशन देता हूँ कि अगर आप ऑफलाइन या ऐसे स्टार्ट कर रहे हो विद योर सम ऑफ योर क्लाइंट्स, सो यू कैन स्टार्ट विद बेयर मिनिमम ऑफ लेट्स से 2000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो दैट्स अगेन वेल एंड गुड। लेट मी शेयर कैलकुलेटर विथ यू, ठीक है। let me share the calculator with you so that you can just see some understand some of the stuff, okay. So here I'm basically sharing a small piece, let's say calculator with you, calculator screen with you, okay. So here is basically thing, let's say 2000 rupees के हिसाब से अगर आप start कर रहे हो, ठीक है। so if you are starting with 2000 rupees, let me shrink it, 2000 रुपीज से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, 2000 रुपीज से भी अगर आप स्टार्ट करो, एंड लेट्स से इफ यू हैव 10 क्लाइंट्स तो भी आप 20,000 रुपीज पर मंथ आप कमा सकते हो, काम कर सकते हो। वैसे आपको काम कितना करना है या क्या करना है, ठीक है। इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेट्स से 5 मिनट्स फॉर अ पोस्ट। एक पोस्ट अगर आपको किसी क्लाइंट इस पर पोस्ट करना है ऑन बिहाफ ऑफ देम, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ देम, तो और एक 5-10 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। 5 या 10 मिनट के काम के लिए रोज एक काम 5 या 10 मिनट के लिए आपको किसी का करना है, ठीक है। उसके लिए अगर आपको 2000 रुपये कम से कम दे रहा है तो दैट्स अगेन वेल एंड गुड, ठीक है। वहीं अगर आप 2000 के बजाय 5000 रुपीज चार्ज कर रहे हो एंड इफ यू हैव ओनली 10 क्लाइंट्स तब भी 50,000 रुपीज होता है, ठीक है। और वहीं अगर 5000 रुपीज अगर आप चार्ज कर रहे हो और आपके 100 क्लाइंट्स हो गए तो यू विल बी अर्निंग 5 लाख रुपीज पर मंथ, यू विल बी अर्निंग 5 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है। या फिर अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, ठीक है, या फिर अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, गोइंग बैक टू द स्लाइड ऑफ साहिल, ठीक है। he got a project of $755, he got a project of $755 for 30 days, $755 for 30 days, okay. Let me switch to the Google, or let me switch to Google, let me open this, okay. Let me say USD to INR, okay. Let me say USD to INR, ठीक है। and if I say $755 so it's 56,000 rupees, ठीक है, it's 56,000 rupees, ओके। तो यहाँ अगर हम जूम करते हैं इसको तो हमें यहाँ दिख रहा है कि 56,000 रुपीज हो रहा है, 75 रुपीज .5646 इज इंडियन रुपीज, इट्स फॉर $1, ओके।
तो $755 अगर हम देखते हैं, $755 अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो इट बिकम्स 56,000 रुपीज। ओके, तो साहिल को जो प्रोजेक्ट मिला था वो $755 का मिला था, मतलब 56,000 रुपीज। चलो 50,000 रुपीज भी अगर हम पकड़ते हैं, तब भी अगर मैं देखता हूँ ऐसे मुझे 10 क्लाइंट भी मिल गए, तब भी 5 लाख रुपीज अ मंथ, तब भी 5 लाख रुपीज अ मंथ आई कैन अर्न। Okay, and that is possible, that is possible, and that we can do, or that anyone can do. Okay, and that's how we also support lot of clients, we also work with lot of clients. Okay, बहुत सारे clients के साथ हम लोग काम करते हैं ऐसे ही। Okay, तो ऐसे अगर अच्छे clients मिल गए तब भी आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू आप घर बैठे या कहीं से भी काम करके कर सकते हो, है ना, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Moving ahead with another testimonial for IIT Mumbai. Okay, so where we had conducted a brand management workshop. Okay, then another one from again IIT Mumbai. We had conducted a webpreneurship workshop there in IIT Mumbai. Okay, so webpreneurship workshop in IIT Mumbai where we told people that how they can make money working online या घर से बैठकर इंटरनेट से बैठकर काम कर सकते हैं, like e-commerce and lot of other stuff. Okay, so that was a training for 2 days workshop again. So again, Himanshu Jain attended that. He is basically an assistant, executive assistant to a director of an MNC. Okay, so there again you can work like with a lot of people. So he shared that snapshot and the testimonial. Okay, then in this course basically we will be learning all these things. We will be learning Facebook marketing, Instagram marketing, YouTube marketing, okay, blogging, then graphic designing, hashtags, tools and softwares, and a lot of tips and tricks. बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग इसमें देखेंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग हम लोग पढ़ेंगे, यूट्यूब और वीडियो मार्केटिंग कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, कौन कौन से टूल्स एंड सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं। देन ब्लॉगिंग हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करेंगे, इंस्टाग्राम पर और बाकी चैनल्स पर हैशटैग्स का यूज कैसे करना है, क्योंकि हैशटैग्स अगेन हैज लॉट ऑफ मिथ्स एंड लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस पीपल हैव। ओके, बहुत सारे लोग उसको गलत यूज करते हैं, कैसे यूज करना है, क्या करना है, किस तरीके से कौन से करना है, ठीक है, and lot of tips and tricks. And we will also be covering email marketing. We will also be covering email marketing. So I didn't add it to the slide. Okay, so we will also be covering email marketing to this as well. Okay, so that's basically level 1 where we will be learning. Then I have a lot of other programs. Okay, so this is basically my full program where we call it a digital blueprint, जहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें कवर करता हूँ। तो email marketing, Facebook marketing, Instagram marketing, YouTube and Twitter video marketing, Twitter, LinkedIn, Pinterest, TikTok ads कैसे रन करने हैं वो भी, then Facebook and all तो हो गया, then affiliate marketing, blogging, content creation, graphic design, hashtags, secret, lot of secrets and all we share with people, and then some tools and softwares also we cover. Okay, and generally I offer these things to the people who register for the digital blueprint, which is a full 5-day program basically. Okay, so a lot of other things I help with them, so I do cover a lot of stuff and share a lot of things with people. Okay, these are my basically handles where you can follow me and you can do other stuff. Okay, so you have to follow me on these channels. Let's say you can follow my Facebook page Atul Palandurkar, Instagram Atul Palandurkar, then YouTube is again there. Just follow on me on these channels, तो क्योंकि मैं continuously कुछ ना कुछ वहाँ पर share करते रहता हूँ, तो आपको भी वहाँ से कुछ ना कुछ continuously मिलते रहेगा. Okay, and all that things there. Then you can or you may already have my mail ID and the number. Okay, so that's it. So this is how we can just deal with a lot of things like that. So let me share that again. If you are in business but not using digital marketing, soon you'll be out of business, and you should keep that in mind. Okay, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हम उसको नहीं करते हैं तो क्या होता है कि प्रॉब्लम होगा। डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ हमको प्रॉपरली करना है, सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। I know every one of you wanted to do a lot of things and all. Okay, so we will be starting with one thing now.